Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher with the principles of agronomy, and our course number is EAS 5111. Okay. So, in our previous lecture, we had seen that the factors affecting crop growth and development. So, there was different kinds of factor, and they affected the how they affected the crop growth. We had already seen that. Okay. So, in this lecture, our today's topic is tillage, objective of tillage, and tillage influences on physical properties of soils. Okay. So, in this lecture, we will discuss two more topics, which is tillage, objectives of tillage. Okay, after that next lecture we will discuss about the tillage influence on physical properties of soil. Okay, so this is very important chapter about tillage, especially for BTech agriculture students. So you need to understand what is tillage. Okay, because every time question has been asked frequently in this from this topic of tillage, what is tillage and how they affect our crop production, their objectives and types of tillage, like that. Okay, and the factors, like, okay, so this is very important. So anyways, let us start. What is tillage? Okay, so firstly we will see that some definition, some meaning of tillage, then after we reach objectives of tillage. Okay, so let us see. Yes, so tillage operations in various form have been practiced from the very inception of growing plants. Okay, so basically we can use the tillage operation for upgrading the soil. Okay, soil को उलट पलट करना या अपग्रेड करना, इन सारे प्रोसेस की वजह से, या ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं जो हम करते हैं सॉइल में, दैट इज़ कॉल्ड द टीलेज. ओके, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए जो हम उससे पहले जो फील्ड का प्रेपरेशन करते हैं थ्रू दी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द टीलेज ऑपरेशंस. ओके, सो बेसिकली हम टीलेज को कैसे डिफाइन करेंगे कि टीलेज ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो हम फील्ड प्रेपरेशन में करते हैं. ठीक है, फॉर दी उलट पलट, फॉर दी सॉइल, मतलब हम सॉइल को क्या करते हैं, अप्स एंड डाउन करते हैं फॉर देयर इम्प्रूविंग देयर स्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग देयर टेक्सचर. ओके, सो इन सारे सिचुएशंस की वजह से या इन सारे फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं कि हम उसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर हम सुधारते हैं ताकि वो क्या करे, ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखे, पोरोसिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है, भुरभुरा हो, वेरिएबल सॉइल्स हो. तो ये जो ऑपरेशन हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द टिलेज. Okay, so primitive man used tools to disturb the soil for placing the seeds. The word tillage is derived from Anglo-Saxon word tillion and tillolian. Okay, meaning to plow and prepare soil for seed to show, to cultivate and to raise crop. ठीक है, सो टीलेज जो है वो हमने टीलेज जो है वो दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. ठीक है, एट दैट कुड बी अ टिलियन और टियोलियन. ओके, सो उसका मीनिंग होता है कि प्लाउइंग करना, बेसिकली प्लॉइंग करना मतलब हल चलाना, मिट्टी को उलट पलट करना, ताकि हम उसकी जो पोरोसिटी है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको एनहेंस कर सकें. ठीक है, क्यों एनहेंस कर सके, ताकि हम उसमें कोई क्रॉप रेज कर सकें या कोई कल्टीवेशन ले सकें. ओके, yes, and the Jethro tool. Okay, so Jethro tool scientist is the one of the one of the famous scientists who is discovered the tillage. Okay, so that is why we will say that some जेथ्रो टूल को हम कह सकते हैं कि वो फादर ऑफ द टीलेज है, या जेथ्रो टूल ने सबसे पहले वीड टर्म भी दिया था. ठीक है, तो हम उनको कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी के वो क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं. ठीक है, सो जेथ्रो टूल हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ टीलेज. क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने टीलेज जो टर्म है, ठीक है, या जो हम ऑपरेशंस करते हैं, जो हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उस प्रैक्टिसेस को एक स्पेसिफाइड टर्म दिया जो था टीलेज. ओके, सो
that is why we can say that the Jethro Tull is the father of the tillage. Okay, so tillage is the mechanical manipulation of soil with tools and implements for obtaining conditions ideal for seed germination, seeding, establishment and growth of crops. ठीक है, so basically we can use the tillage for the mechanical manipulation of soil with tools, with the help of different tools and implements. Okay, so this is the exact definition for tillage. What definition? This is very important, that tillage is the mechanical manipulation of soil with tools and implements for obtaining conditions ideal for seed germination, seedling establishment and growth of the crop. Okay, so this is the specific definition for tillage. Okay, so yes, we have characteristics of tillage. This is also the very important chapter for perspective of our point of view, exams point of view. So yes, good tilth refers to the favorable physical conditions for germination and growth of crop. ठीक है, तो हम अच्छा टिल्थ जब करते हैं, टीलेज हम अच्छा करते हैं, तो वो क्या होता है, फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, या हम कह सकें जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है सॉइल का, जो क्ले सिल्ट पार्ट से या रॉक जो पार्टिकल्स होते हैं, इन सारे चीज़ों से मिलके क्या होता है, सॉइल बना है. तो फिज़िकल कंडीशन जो है सॉइल की, उसको हम क्या करते हैं, फेवरेबल बनाते हैं. क्यों फेवरेबल बनाते हैं? फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप, as well as for the establishment of the seeds for germination, we could say. Okay, and the second thing is, tilth indicate two properties of soil. Okay, what properties? The size distribution of aggregates and mellowness of variability of soil. ठीक है, तो जो सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, सॉइल एग्रीगेट्स मतलब जो हमारा सॉइल पार्टिकल है, वो डिफरेंट क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल से मिलके बना है. ठीक है, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल्स जो हैं आपस में जॉइंट होके सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल कहते हैं. ओके, इन सबको हम बाइंड अप करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सॉइल. ठीक है, तो क्या करता है, वो वेरिएबिलिटी बनाता है, वेरिएबल बनाता है मतलब भुरभुरा बनाता है. ठीक है, भुरभुरा बनाने मतलब उसकी जो पोरोसिटी है, पोर्स हैं उसमें, ठीक है, जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है किसकी, सॉइल की. ठीक है, वो क्या होती है, एनहेंस होती है. क्यों होती है? टीलेज ऑपरेशंस हम जब करते हैं, जब हम मिट्टी को उलट पलट करते हैं, तो उसकी जो पोरोसिटी है, वेरिएबिलिटी है सॉइल की, वो एनहेंस होती है. जो किस चीज़ में हेल्प करती है, सॉइल को वाटर होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी है, बहुत टाइम तक सॉइल जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट and this is a very essential for our seed germination, okay, and development of the another crops. Okay, the next thing is the relative proportion of different sized soil aggregates is known as size distribution of soil aggregates. So what is soil aggregates? particularly आप soil science के सिलेबस में से डिटेल से पढ़ेंगे. आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि जो हमारा सॉइल होता है वो अलग अलग पार्टिकल साइज से मिलके बना होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे 3 मेजर पार्टिकल्स होते हैं. जो सैंड होता है मतलब रेत होती है, स्लिट होता है, सिल्ट होता है, ठीक है, जो थोड़े रॉक टाइप के जो सॉइल होते हैं उनको कहते हैं, और जो क्ले सॉइल होता है जो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है. ठीक है, तो आपस में ये सब मिलके बाइंड होके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं सॉइल का. ठीक है, और इंडिविजुअली भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं लोकेशन वाइज जो हैं हमें मिलते हैं. ठीक है, तो इस वजह से हर एक लोकेशन में या हर एक एरिया में एरिया वाइज है सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. कहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, सॉइल जिस पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, जिस एग्रीगेट से मिला है, बन के बना है, जिस टाइप का उसका टेक्सचर है, ठीक है, वो उस जगह की या उस लोकेशन के हिसाब से अनुसार उसके क्या करता है, उसको डिफाइन करता है. ओके,
So higher percentage of layer aggregates with a size above 5 mm in diameter are necessary for irrigated agriculture, while higher percentage of smaller aggregate which is ranges between 1 to 2 mm in diameter are the desirable for rain fed agriculture. ठीक है, तो रेन फेड एग्रीकल्चर के लिए क्या डिज़ायर है, 1 to 2 mm जो है डायमीटर सॉइल का होना चाहिए. ठीक है, और जो इरिगेटेड एरिया है, मतलब जहाँ पे इरिगेशन के रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इरिगेटेड रीजन और इरिगेटेड एरिया. और जहाँ पे इरिगेशन के अलग से, ठीक है, एक पर्टिकुलरली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई कैनल्स, रिवर या पॉन्ड वगैरह नहीं है या ट्यूबवेल नहीं है, ठीक है, वो लोकेशन जो है वो टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल, दैट इज़ कॉल्ड द रेन फेड एग्रीकल्चर और रेन फेड एरिया. ठीक है, तो जो रेन फेड एरिया है वहाँ पे सॉइल की जो एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल डायमीटर है सॉइल का वो क्या है, 1 to 2 mm डायमीटर का सॉइल वहाँ पे बहुत ही डिज़ायरेबल पाया जाता है, मतलब वांछनीय है, हमें उस टाइप की एक्सेप्टेबल है, हमें उस टाइप की सॉइल उस लोकेशन के लिए चाहिए जहाँ इरिगेशन के रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, और जहाँ इरिगेशन के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ अवेलेबल है, मतलब जो इरिगेटेड एरिया जहाँ पे कैनल्स हैं, पॉन्ड है, रिवर है या ट्यूबवेल की सुविधा है, दैट इज़ कॉल्ड द इरिगेटेड लोकेशन और इरिगेटेड एरिया. ठीक है, तो उस जगह पे हम 5 mm जो डायमीटर के जो सॉइल है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्टेबल है. ठीक है, सो मेलोनेसिस और फेरेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय विच द clouds when they become more crumbly. ठीक है, so this is the very important for soil, this that porosity or variability. So a soil with good tilth is quite porous and has free drainage up to water table. ठीक है, सो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छी, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए हमारे सॉइल पे. ठीक है, अगर हम बहुत टाइम से सॉइल को क्या करते हैं, टीलेज ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है, तो वो जो सॉइल होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है. ठीक, कॉम्पैक्ट हो जाती है मतलब बहुत ही ठोस हो जाती है. ठीक है, और उस टाइप की ठोस सॉइल में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती. ठीक है, मतलब वाटर को सोखने की क्षमता नहीं होती. तो वाटर को जब सोखने की क्षमता नहीं होती तो क्या करेगा, वाटर ओवरफ्लोड करेगा, मतलब अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा, या तो वहाँ पे हमें ड्रेनेज कैनाल बनाना पड़ेगा. ठीक है, फॉर किस लिए, रिड्यूस करने के लिए, किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन को कम करने के लिए हमें एक कैनल, प्रॉपर ड्रेनेज चैनल बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से जो वेरिएबल सॉइल है या पोरोसिटी वाली सॉइल है या पोरस सॉइल है, ठीक है, मतलब भुरभुरी मिट्टी है, वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है या डिज़ायरेबल है. ओके, so the capillary and non-capillary pores should be in equal proportion so that sufficient amount of water and free air is retained respectively. ठीक है, तो क्या होता है, कैपिलरी वाटर और नॉन कैपिलरी वाटर, आपने जैसे वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड, जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक है, तो वो जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का, उसको हम कहते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक वाटर. एंड देन कैपिलरी वाटर, तो जब वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर का, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैपिलरी वाटर. ठीक है, तो ये जो है आप डिटेल से वाटर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, बट हमें अभी ये जानना है कि कैपिलरी जो वाटर है, ठीक है, वो क्या करती है, वाटर में जिस टाइप से जो फ्री एयर्स हों, क्योंकि हम जैसे प्लांट जो हैं उनको रेस्पिरेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत होती है या एयर की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जो अपटेक और इनटेक करने का काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, हमारे ह्यूमन में भी ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन अपटेक करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर फेंकते हैं. ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशन है वो हमारे सॉइल में भी एसेंशियल है. ठीक है, सॉइल भी एक तरीके से उसमें भी क्या होता है, रेस्पिरेशन जैसी क्रिया होती है, नॉट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन, पर उसको भी एसेंशियल एयर की क्या होती है, एसेंशियल एयर की आवश्यकता होती है, जिससे वो पोरोसिटी को या सॉइल की वेरिएबिलिटी को बनाए रखे. ठीक है,
तो इन सारी कंडीशंस की वजह से हमें पोर्स को अच्छा करने के लिए हमें क्या होता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टीलेज कराने की ज़रूरत है हमारे फील्ड पे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीलेज, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। Okay, so the term which is we are facing, that tilth, okay. So let us see what is tilth. So tilth is the physical condition of soil obtained out of tillage, or it is a result of tillage. So we can say that the tilth may be a coarse tilth, fine tilth, or moderate tilth. So that could be the texture of soil, we can say, ठीक है। ये टेक्सचर हो सकता है सॉइल का, कैसे हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा टिल्थ है, फाइन टिल्थ है, ठीक है, मतलब अच्छी पोरोसिटी है उसकी, या मॉडरेट है मतलब ठीक ठाक उसकी पोरोसिटी है, या क्या है बहुत ही वर्स्ट है, बहुत ही वर्स्ट टिल्थ है मतलब अच्छी पोरोसिटी नहीं है, कॉम्पैक्ट है सॉइल, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन जो सॉइल की है उसको हम क्या कहते हैं, टिल्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट टिलेज क्या होता है कि सॉइल को मैकेनिकल मैनिपुलेट करना, ठीक है, मतलब क्या करना, सुधार करना, हम कह सकते हैं अपग्रेड करना, मिट्टी को उलट पलट करना, क्यों करना, फॉर दी एनहेंसिंग पोरोसिटी, फॉर एनहेंसिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड द टिलेज. But what is tilth? So tilth is the physical condition of soil obtained out of tillage. Okay, so basically the tilth is coarse tilth, fine tilth and moderate tilth. Okay, so there is no need to be confused, both are very different. Tillage is a very different term and tilth is a very different term. Okay, so you need to understand both terms. Okay, so tilth is the physical condition of soil resulting from tillage. ठीक है, मतलब टीलेज हम कर लेते हैं, टीलेज ऑपरेशन या टीलेज प्रैक्टिसेस हम जब कर लेते हैं, मतलब कल्टीवेटर या प्लॉइंग जब हम कर लेते हैं, कल्टीवेटर चला लेते हैं, प्लॉइंग कर लेते हैं, हल चला लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सॉइल की कंडीशन होती है, उसके बाद जो हमारी सॉइल की कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड टिल्थ. ओके, सो टिल्थ इज a loose, variable, airy, powdery, granular and crumbly condition of the soil with optimum moisture content, suitable for working and germination or sprouting of seeds and propagules. That is, tilth is the ideal seed bed. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो टिल्थ है वो आफ्टर द टीलेज जो भी कंडीशन हम देखते हैं वो है, तो दैट कुड बी अ वेरिएबल सॉइल, दैट कुड बी अ क्रम्बली सॉइल. ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन द सॉइल एंड इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन और क्रॉप ग्रोथ ऑल्सो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ऑल अबाउट द tilth. Okay, so I hope you understand the basic differences between tilth and tillage. Okay, okay, the next is we have types of tillage. Okay, so types of tilth. Okay, so we have the different types of tilth, which is fine tilth, coarse tilth, fine and coarse seed bale tilth. Okay, so let us see one by one. Okay, the first one is fine tilth. So fine tilth refers to the powdery condition of the soil. ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पाउडरी कंडीशन होती है सॉइल की, तो दैट इज कॉल्ड द फाइन टिल्थ. Then coarse tilth. So as name suggests that coarse tilth refers to the rough cloudy condition of the soil. मतलब बहुत ही आप देखेंगे कि बहुत मोटी मोटी मिट्टी है, अच्छे से वेरिएबल नहीं है, कहीं पे बहुत बड़ा ढेला टाइप का बना हुआ है, कहीं पे छोटी सॉइल है, कहीं पे बड़ी सॉइल है, दैट इज कॉल्ड द कोर्स सॉइल. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर. And then fine seed bed is required for small seeded crop like ragi, onion, barsim and tobacco. Okay, so basically we need fine seed bed or fine tilth as well as for the different crop. So we need the different tilth situation, different soil condition for different crops. Okay, so for ragi, onion, barsi, tobacco, fine tilth is required.
and for chickpea, sorghum, cotton is coarse seed bed is required or coarse tilth is required. Okay, so every crop has their different or their individual recommendation of soil condition. Okay, okay, so let us move. Okay, then we have objectives of tillage. This is very important. Every time question has been asked this from this topic, which is objectives of tillage. Okay, so listen very carefully. The main objective of tillage are, you write properly in your exam, step by step. If you एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाट इज टीलेज, ठीक है, देन एंड टाइप्स ऑफ टीलेज, तो ऐसा नहीं कि आप व्हाट इज टीलेज बता रहे हैं और टाइप्स ऑफ भी टीलेज बता रहे हैं. आप टीलेज के अगर वो 5 मार्क्स का आपको पूछता है तो आप टीलेज के बारे में क्या क्या जानते हैं. देन व्हाट इज टीलेज, द टीलेज के अंदर में टिल्थ भी आता है. आप धीरे से डिफाइन करिए, छोटे से मतलब बहुत ही ब्रीफली डिफाइन कीजिए कि टाइप्स ऑफ द टीलेज, दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीलेज, इम्पॉर्टेंट ऑफ द टीलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ द टीलेज. ठीक है, तो आप जब ऐसा डिफाइन करेंगे देन श्योरली यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस टिप्स. ओके, एनीवेज let us see the objectives of the tillage. To prepare a good seed bed which has the germination of seeds. This is a very basic objectives for tillage. Okay, so to create condition in the soil suited for better growth of crops, to control the weeds effectively, to make the soil capable for absorbing more rainwater, means that the water holding capacity is very good for performing very good tillage. Okay, so mix up the manure and fertilizer uniformly in the soil to aerate the soil. एरेशन अच्छे से होता है सॉइल का. ठीक है, और क्या होता है, हम क्या करते हैं जब प्लॉइंग करते हैं, मतलब टीलेज ऑपरेशन करते हैं, बेसिकली हम जब प्लॉइंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल एज वेल एज द फॉर क्रॉप डेवलपमेंट, फॉर क्रॉप essentiality, we can say that. Okay, then next is to provide adequate seed soil contact to permit water flow to seed and seedling roots, to remove the hard pan and to increase the soil depth. Okay, so हमारे जो seeds होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेप्थ होता है उनका. ठीक है, उतनी गहराई में हम उसको जब सोइंग करते हैं, हम उसको जब लगाते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होता है. तो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस, वी कैन से दैट द हार्ड पैन टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ, मतलब एक हार्ड पैन डेवलपमेंट होता है. क्यों, ताकि हम सॉइल को एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द सीड हम क्या करें, उस डेप्थ में उसे हम सोइंग कर पाएँ. ठीक है, लगा पाएँ. एंड द नेक्स्ट इज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द सॉइल इज डिस्टर्ब ओपन अप द टर्न ओवर. ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो इससे क्या होता है, सॉइल की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है. ठीक है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ एनहेंस होना मतलब क्या होता है, उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी होती है. ठीक है, उसमें बहुत ही न्यूट्रिएंट को अपने में अपटेक करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, गुड एरेशन होता है टीलेज करने से. ओके, सो दे आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीलेज. Okay, so I hope you all got the sense what I wanted to said. Okay, so this is enough for today, and in our next lecture we will discuss the influences for the tillage, मतलब किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है टीलेज हमारे बाकी के फैक्टर्स पे, ये सारा हम देखेंगे. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर.